So we are live now. Again, good morning everyone. This is the first class of Polity, Lakshmikant. As I have already told you, we will try to read the book line by line. From your side, I expect that after the class, you will read the book again. Uh, you have prelims questions with you. I will send some questions as well, and you have the book Lakshmikant MCQ based books. So you should try to read, solve the questions from that. Otherwise, my approach for teaching will be such that while teaching, I will tell you what kind of questions can be framed, where you should focus, and all. So after the class, solving MCQs at least will become very easy for you. देखते हैं. So this is the sixth edition of Indian Polity. If you have this edition, well and good. PDF तो मैं नहीं दे रहा हूँ. Even if you have fifth edition, it's okay. You are अगर फिजिकल तुम्हारे पास फिफ्थ है तो भी यू आर नॉट लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बाई द सिक्स वन. फिफ्थ से काम चलेगा. The first chapter of Lakshmikant is historical background. As I told you, this chapter we will not be reading. This chapter we will read when we have read the history. When we have read modern history, those who have read modern history, they can read and understand this. It's a very important chapter. Almost every year, if you could, at least one question you can assume from this portion in prelims. तो important है, हर साल कोई ना कोई act पूछता ही है. But we are not doing that. Doesn't mean it's not an important chapter. हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. आज कोशिश करेंगे कि हम ये दो चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लें. इट विल डिपेंड कि how quickly you are able to understand. If you have any problem, you ask in the class. This is the syllabus for GS paper 2. As I've already told you, हम इस बार पॉलिटी ऐसे करेंगे कि प्री और मेंस दोनों कवर कर सके. फोकस विल बी to create a balance between prelims and mains approach. Prelims के perspective से many of you have already read polity a little bit, लेकिन इस बार हम मेंस के टॉपिक्स भी साथ साथ देखते चलेंगे. So the first topic here is Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. So if we look at the Lakshmikant, this first two topics, historical background and making of constitution, directly relates to historical underpinnings and evolution. ठीक है, ये दो चैप्टर कर लेंगे तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा. The third is features. So the third chapter here we have is salient features of constitution. So ये तीन टॉपिक हम आज चार टॉपिक, हाँ तीन टॉपिक एज पर यूपीएससी सिलेबस तीन टॉपिक आज कवर करेंगे. बाकी as we will move forward, I will be correlating this syllabus with the Lakshmikant. चलो. So any questions, any doubts? कुछ पूछना है बताओ before we start. ठीक. So salient features. Sorry, making of
Indian Constitution. It is for the first time, as all of us know, India was under British occupation, British control में था. We were not independent. So it was in 1934 that for the first time, M.N. Roy, you should read a little bit about him. UPSC has asked a question in prelims about him specifically. So M.N. Roy was a leader of सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंड फ्रेम के इंडिया का जो लेफ्ट फ्रंट था उसके ये लीडर थे. ठीक है. मेनली यूज्ड टू टॉक अबाउट लीडर्स, सॉरी, वर्कर्स एंड देयर राइट्स एंड ऑल. तो उस तरीके के मेन रॉय लीडर थे एंड ही वाज क्वाइट पॉपुलर एट हिज टाइम अमंग वर्कर्स एंड ऑल. तो एम.एन. रॉय ने 1934 में बोला पहली बात कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया. तो बोला कि इफ वी हैव टू अटेन इंडिपेंडेंस इन ट्रू सेंस, तो in order to do that we need a constituent assembly. Constituent assembly क्या होता है? An assembly which will be making its own constitution. ठीक है. Aswarya is asking a class duration. I think you have to go to your work on internship के लिए जाना होगा 9 बजे के आसपास. ठीक है. We at least when we are starting at 7:30, so it will go at least till 9. I'm still trying to figure out कि कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं. Depending upon that, we will decide कि टाइम क्या रखना है, कैसे प्लान करना है शेड्यूल. फॉर नाउ आज तो 9 बजे तक करेंगे. ठीक है. कल से फिर अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने बोला कि भाई अपने हमें अगर सही में इंडिपेंडेंस लेना है तो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच कैन फ्रेम इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ये आइडिया सबसे पहले क्या याद रखना है हमने को? M.N. Roy gave this idea in 1934. If you have read history a little bit, you may remember that in India, Britishers used to mock Indians. India was asking for it independence. कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए. And some of the Western scholars, they used to mock or ridicule India by saying that you people are not capable of ruling yourself. बोला कि तुमको आज़ादी चाहिए, हम कर तुमको आज़ादी दे देंगे, बट तुम आज़ादी के लायक हो ही नहीं, तो तुम आज़ादी लेकर करोगे क्या? You will not be able to rule yourself. You are uneducated, illiterate, uncivilized society. And that's why we have read in history that Congress set up a Nehru committee and they produced Nehru report. That was the first attempt to plan or to write a kind of guideline or kind of constitution for India. वहां से सबसे पहले ये एक अटेम्प्ट स्टार्ट होता है कि हम अपने लिए अपना कानून बनाएंगे या अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. Although this fight for making law और सेल्फ रूल, स्वराज जिसको गांधी जी कहते थे, सेल्फ रूल, मेकिंग लॉ फॉर ओन, इंडियाज लॉ शुड बी मेड बाय द इंडियन पीपल. बिकॉज इससे पहले क्या होता था? ब्रिटिशर्स यूज्ड टू मेक फॉर इंडियंस. इंडिया में कैसे ट्रेड होगा, कैसा लॉ चलेगा, कैसा रिलीजन चलेगा, कैसे स्कूल में पढ़ाई होगी, all of that was decided by Britishers, and our freedom fighters were fighting for self rule. एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे लड़ रहे थे कि लेट्स थ्रो ब्रिटिशर्स आउट ऑफ द कंट्री. ऑन द अदर साइड सम पीपल वर फाइटिंग that
and those people were trying to work with the Britishers in a way that we get the right to make laws for ourselves. और उसी कॉन्टेक्स्ट में if you will see कि M.N. Roy said in 1934 that a self rule can be established, or any idea of a self or independent government India can only be fruitful or can only be realized when we have a constituent assembly for India. Slowly, this idea gathered some pace, and in 1935, Indian National Congress also supported the same idea. In 1938, Nehru declared that Constitution of Free India must be framed. कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए for free India, and for that a constituent assembly should be elected on the basis of adult franchise. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ. देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. As we will read later, we will see that the constituent assembly which was elected, इस बार भी क्वेश्चन आया constituent assembly had elected members prelims में, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, we have discussed that as well. So Nehru wanted to make a constituent assembly which was elected on a adult franchise. अब ये अगर स्टेटमेंट आ गए एग्जाम में तो you will get confused, because as we will read further and we will know that our constituent assembly was not based upon adult franchise. तो you will assume कि नेहरू ने भी ऐसा नहीं बोला होगा कि adult franchise बनाना है, but he wanted it to be on the line of adult franchise, but later they realized it's not possible and it was not made up on the basis of universal adult franchise. I hope all of you are aware with the idea of universal adult franchise. This simply means every person has one vote, one person, one vote, and everybody who is adult beyond a certain age, that can be 18 plus or 20 plus, 21 plus, they will have a vote irrespective of their wealth, irrespective of their education or anything else. तो ऐसा नेहरू चाहते थे. ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? नेहरू wanted a constituent assembly based upon universal adult franchise. स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? तो गलती नहीं करना है. ठीक है, समझ में आ गई बात? कल कौन पूछ रहा था, कौन संकेत बोल रहा था कि यूट्यूब वाले पढ़ाते कम है, पूछते ज्यादा है. बच्चे समझ में आई. Demand was finally accepted. So this demand for the constituent assembly was accepted in principle. क्या मतलब होता है accepted in principle का? When you accept anything in principle, what does this mean? On paper बोला कि ठीक है हम कर लेंगे. I agree that this is something that should be done. It was not actually implemented, but बोला कि ठीक है कर सकते हैं. तो ब्रिटिशर्स ने 1940 में ऑफर किया इंडिया को कि ठीक है, वी विल अलाउ यू टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, and this is known as August offer. Now if you will read the history a little, you will again know that the Second World War was starting in 1940, and Britishers wanted the support of Indian people in their fight, and that's why they offered this constituent assembly का proposal, so that India can, or Indian soldiers can take part, willingly can take part in the world war. लेकिन what happened? India did not accepted this offer, और ये फेल हो जाता है. इस समय कोई बात बनती नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी या नहीं बनेगी. सो इट फेल्ड. Again in 1942, this was the time when Hitler was at its
at its best. He was winning almost all the wars, and it seems like British Britain will get defeated. So then again they sent Cripps, स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, विच इज नोन एज क्रिप्स मिशन. 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, एंड they also come up with this idea of an independent constitution for India after World War II. लेकिन इसको भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों रिजेक्ट कर देते हैं. 1942 के हिसाब को गांधी क्या कहते हैं? वेरी फेमस स्टेटमेंट, किसी को याद है व्हाट गांधी सेड टू दिस? पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक. दैट इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक. बोला कि एक तो तुम अपने गड्ढे में जा रहे हो, तुम खुद बचोगे कि नहीं बचोगे पता नहीं तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो कि हम जीत जाएंगे तब तुमको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे. तो एक फेल होता हुआ बैंक बोले कि मैं तुमको 2 साल के बाद उधार दे दूंगा, तो तुम क्या करोगे? So it's a post dated check on a failing bank, and they didn't accepted this offer as well. It was also rejected by the Muslim League because by now Muslim League had started asking for 2 states. If you will read in history, 1940 से पहले Muslim League was not specifically asking for separate Pakistan. For the first time, they come up with this idea of separate Pakistan in 1940. By 1942, they were very adamant on that. कि 2 states, अगर अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हमको कुछ नहीं करना है. We will not participate in any such constituent assembly. So they wanted 2 autonomous states with 2 constituent assemblies. बोला कि एक नहीं बनाना है तो 2 बनाओ, नहीं तो नहीं बनेगा. But finally, a cabinet mission was sent to India. It is called cabinet mission. Again, in history, we have read, or you will read again. It was called cabinet mission because it has member from the British cabinet. British parliament के जो cabinet ministers थे, वो आते हैं इंडिया इस मिशन का पार्ट बन के. Again, a cabinet mission will be very powerful. Like इंडिया से सोचो कि अमित शाह और राजनाथ सिंह और मोदी जी खुद जाके कहीं कोई डील करके आए, तो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा. तो कैबिनेट मिशन आता है इंडिया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, दैट कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज. तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं. इन कैबिनेट मिशन द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिजेक्टेड, बट इट पुट फॉरवर्ड सच एन स्कीम जिसको मुस्लिम लोग लीग थोड़ा मान जाता है कि ठीक है चलो इस पे काम कर सकते हैं. फिलहाल हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन डिटेल की. इट वाज काइंड ऑफ एन एम्बिगुअस प्रपोजल. दोनों को लगा है, कांग्रेस को लग रहा था कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, उनको लग रहा था कि हम जो ठीक सोच रहे हैं वो ठीक है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हु वाज द मेंबर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? So Constituent Assembly was constituted in November 1946. So even before our independence, we have started writing our constitution. लगभग 1 साल पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना का काम स्टार्ट कर दिया था नवंबर 1946 में. Strength is not that important. I have not seen any exam where exact numbers are asked कि कितने नंबर थे. तो याद रहे तो ठीक है, otherwise you do not have to beat yourself on this. So initially the Constituent Assembly में there was a seat for 389 members. इसमें से 296 आने थे ब्रिटिश इंडिया से. देखो थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है. ये है अपना इंडिया. ब्रिटिशर्स के टाइम में जो इंडिया था उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था.
बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था। तो ये उस समय का ब्रिटिश इंडिया था। अब इस ब्रिटिश इंडिया में देयर वर टू काइंड ऑफ प्लेसेस, और हाँ, मान लो कि दो तरीके के स्टेट्स या दो तरीके के पॉलिटिकल एंटिटीज थी। कुछ ऐसे स्टेट्स थे दे वर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, जिनको हम बोलते थे कि गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये जैसे आज यूपी बिहार है, इस तरीके का स्टेट हुआ करता था जहां पे कि गवर्नर्स बैठते थे। और ऐसे 11 प्रोविंसेस उस समय थे। 11 प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट। आज के टाइम में जो हम स्टेट समझते हैं वो मान लो। तो उस समय ऐसे 11 प्रोविंसेस थे जहां पे गवर्नर्स बैठते थे। बट देयर वर मेनी अदर प्लेसेस वेयर ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव द डायरेक्ट कंट्रोल। वहां पे इंडियन रूलर्स थे, एंड दिस वाज अबाउट 40% ऑफ टोटल किंगडम। पूरा जो रीजन था इसमें जो 40% जो एरिया लगभग था वो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स के आसपास था। 40% से कम ही होना चाहिए, बट अबाउट 40% मोर और लेस, जहाँ पे कि ऐसे जैसे बड़ोदरा के राजा हो गए, और जूनागढ़ के राजा हो गए, हैदराबाद का एम्पायर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे राजा थे जिनको कि प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ठीक है, जहाँ पे कि प्रिंसेस हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स। तो इन लोगों को 93 सीट्स दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स। ब्रिटिश इंडिया में फिर दो तरीके के और डिविजन यहाँ देखने को मिलते हैं। 296 में 292 तो 11 गवर्नर वाले स्टेट्स को मिल गए, और 4 ऐसे सीट्स थे जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। जैसे आज के टाइम में यूनियन टेरिटरीज हम लोग सुनते हैं ना, जहाँ पे सीएम नहीं होता है या गवर्नर एज सच नहीं होता है, कमिश्नर। जैसे कि चंडीगढ़ में देखो, तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में विल फाइंड चीफ कमिश्नर। तो ऐसे प्लेसेस में ऐसे कुछ जगह थे, कमिश्नरी जो थी वहां के, वहां से 4 सीट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस वाज डन in proportion to the respective population। एरिया वाइज डिवीजन नहीं था, पॉपुलेशन वाइज डिवीजन था। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, बैंगलोर, ये सब, बॉम्बे, मद्रास, ये सब हाईली पॉपुलेटेड एरियाज थे विच वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स। सो दे गॉट, दीज रीजन्स गॉट मोर सीट्स। आज के टाइम में जैसे होता है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन जिस स्टेट का होगा उतना ज्यादा उसको सीट मिलेगा। इनिशियल डिवीजन वाज अबाउट 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। एक 10 लाख सीट पे एक, सॉरी 10 लाख आदमी पे एक सीट बनाया गया। तो उस समय हम क्या देख सकते हैं, ऐसा लगभग अगर 400 सीट बना तो 400 के आस 400 करोड़ के आसपास लोग रहे होंगे, सॉरी 40 करोड़ के आसपास लोग रहे होंगे, ऑलमोस्ट मोर और लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो इलेक्शन होता था, जो सीट्स थे, दैट सीट्स वर डिसाइडेड ऑन अ कॉम्युनल लाइन। ऐसा नहीं था कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन कम। Based upon the population of 3 communities, Muslims, Sikhs, and general, seats were divided. देखो मुस्लिम, सिक्स और हिंदूज नहीं है, क्या है, मुस्लिम, सिक्स एंड जनरल पॉपुलेशन। तो ये मान लो 389 जो है, दिस 389
और 389 नहीं, ये तो ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करें तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में कितने सीट्स हैं? 296. So in this 296 seats will be reserved for general population, seat will be reserved for Muslim population, and seat will be reserved for Sikh population. So मान लो if general population is 80%, so 80% of 296 seats will be given to general population. If Muslims are 18%, so 18% seats will go to Muslims, 2% seats will go to Sikhs. Now this general population has or everyone else, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis, सबका मिला के हम जनरल में काउंट करते थे as per Britishes. Now we do not follow this. Now प्रोविंसेस में कैसे इलेक्शन हुआ? प्रोविंसेस में जो इलेक्शन हुआ, इट वाज डन on the basis of on representatives of each community were to be elected by the members of that community. जैसे मान लो कि let's suppose बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रोविंस है. So Bombay province में let's suppose the exact number we will find in the table below, although not very important. So मान लो बॉम्बे प्रोविंस में there are 60 seats. Now in these 60 seats there are 50 seats for Hindus, 8 seats for Muslims, and 2 seats for Sikhs. I'm just taking a assumed number. तो क्या होगा, ये 50 सीट्स के लिए बॉम्बे का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता, बॉम्बे में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसके एमएलए, जैसे आज के टाइम में हमारे एमएलए होते हैं, उस टाइम पे उसके जो मेंबर्स थे, they will Hindus will elect Hindu members, Muslims will elect Muslim members, and Sikhs will elect Sikh members. If there are no Sikh members, so there will be no seats for Sikhs. तो ऐसा proportional representative of each community will be elected by the members of that community. ठीक है, ये बात, ये लाइन समझ में आई? हिंदू को हिंदू एमएलए सेलेक्ट करता और हिंदू मेंबर सेलेक्ट करता, मुस्लिम को मुस्लिम, और सिक्स के लिए सिक्स वोट करते हैं. And this was done by the method of proportional representation by means of single transferable vote. Now we will discuss about this later as we'll move forward. President वगैरह का जब पढ़ेंगे तो हम ये क्या होता है proportional representation, how this whole system works, we will discuss later. अभी बस इतना याद रखना है कि ये लोग इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन. क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन. पहले क्या होगा, बॉम्बे के जितने लोग हैं, ऑल द पॉपुलेशन, पीपल ऑफ बॉम्बे विल इलेक्ट एमएलएस, एंड दीज एमएलएस विल वोट फॉर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था उसके लिए ये एमएलए वोट करते हैं. तो लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसा नेहरू ने बोला कि पीपल शुड इलेक्ट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ. पीपल इलेक्टेड एमएलए. आई एम यूजिंग दिस टर्म क्रूडली, ऐसे एग्जाम में एमएलए नहीं लिखना है. बॉम्बे असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इन्होंने इलेक्ट किया, and they elected member of constituent assemblies. Now representative of the princely states were nominated by the heads of princely state. princely states में क्या था, जो हमने ये सीट्स बनाई थी, 93 सीट्स जो हमने प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी थी,
उनके लिए ये प्रोविजन था कि वहां के जो प्रिंस होंगे, he can send anyone, he will nominate कि like in my kingdom this is the person who I think is the best, so उनको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं लास्ट ईयर इस बार के फिल्म्स का। सो पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बहुत लोग गलती करके, इवन आई कुड नॉट लाइक सी द read the question in that context, it was so easy if you could if anybody can decipher कि वो क्या पूछना चाह रहा है। Hmm, कौन सा क्वेश्चन था? प्राइवेट हॉस्पिटल, अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन। कितना नंबर क्वेश्चन था, किसी को याद है क्या? हिस्ट्री वाले में था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 54। Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states। ये क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कहां से आएंगे? दे विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज as well as princely states। So this statement is wrong क्योंकि हमने क्या पढ़ा, देखो यूपीएससी will always play with this term, ये बहुत फेवरेट टर्म है, and for any question setter if you will think like a क्वेश्चन मेकर तो तुमको ये सबसे आसान चीज दिखता है, यू रिप्लेस नॉमिनेटेड विथ इलेक्टेड एंड यू गेट वेरी गुड क्वेश्चंस। ये क्या थे? प्रोविंशियल असेंबली से उनका नॉमिनेशन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि ऑल द हिंदू और ऑल द जनरल पॉपुलेशन और जनरल एमएलएस विल कम टुगेदर एंड विल से कि इस आदमी को बना दिया जाए। There will be a proper election. People will file their nominations and these MLAs will vote for them, and from them somebody will be elected and then they will be sent. This was the provision. तो nomination नहीं था, election था। Although it was indirect, but it was an election. So provincial assemblies में होता था election और princely states में होता था nomination। ठीक है? ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, so this is the term। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? अगर ट्रू सेंस में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। जो ब्रिटिश इंडिया था वहां से लोग इलेक्ट होकर आते थे और प्रिंसली स्टेट से लोग नॉमिनेट होकर आते थे। दिस वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या है? दो टर्म है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और लिमिटेड फ्रेंचाइज। Universal adult franchise, as I told you, anybody who is adult, who has crossed a certain age,
चाहे वो 18 हो या 21 हो, एज द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स, तो उन सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। लेकिन व्हेन यू विल रीड द लॉज ऑफ 1935 एंड ऑल द लॉज बिफोर दैट ब्रिटिश इंडिया में, तो उस समय वोटिंग का राइट तो था, बट वोटिंग राइट वाज नॉट यूनिवर्सल। एट मेनी प्लेसेस women were not allowed to vote. Later, when women got the right to vote, even men, if you are educated, only then you can vote. If you own property, only then you can vote. तो ये सब क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। लेकिन बाद में हमने यूनिवर्सल अडल्ट अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट हुआ है वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुआ है। ऑल्दो एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग that Nehru wanted it to be made on a basis of universal adult franchise. इलेक्शंस, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना तो इसमें कांग्रेस को मिला 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिला 73 सीट्स, और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स आल्सो गॉट इलेक्टेड। हाँ संकेत बताओ। प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स थे वो लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्टिव हुए थे या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? क्या मैंने बोला, सॉरी? प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स थे, दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट होते थे। अच्छा, हाँ, मतलब सॉरी, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुए, और ये लिमिटेड फ्रेंचाइज वाले लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ठीक है, they were indirectly elected by the members of provincial assemblies who were elected on limited franchise. तो ओवरऑल ये लिमिटेड फ्रेंचाइज ही रहा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सका। खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस won 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलते हैं। ऐसा याद करने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि सम इंडिपेंडेंट्स आल्सो won सीट्स इन दिस इलेक्शन। अगर ऐसा एमसीक्यू में ऐसा लाइन आ जाता है कि no independent could won any seat or all the seats was won by Indian National Congress and Muslim League, तो दोनों गलत होगा। There were some small groups and independents at that time also. लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे डिड नॉट सेंड देयर नॉमिनीज। वहां से कोई नहीं आता है नॉमिनेट होके। इन द इनिशियली बिगनिंग में कोई नहीं आता, लेटर वी विल सी कि सम पीपल ज्वाइंड। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द असेंबली एक्सेप्ट गांधी, और मुस्लिम लीग को भी इंक्लूड कर लें तो एक्सेप्ट जिन्ना। जिन्ना एंड गांधी नेवर ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां से मुझे एक मजेदार बात याद आ गई। गांधी एंड जिन्ना डिड नॉट ज्वाइन दिस, बट यूएसए में, यूएस के नोट पे किसका फिगर छपता है? डॉलर पे किसका फोटो रहता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था यूएसए का, ही वाज वेरी ओल्ड, ही वाज सो सिक दैट ही वाज नॉट एबल टू वॉक। वो चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने लायक नहीं थे, बट he made make sure that he attends all the meetings. So he has arranged a special palki for him, and people will carry him to the constituent assembly and they will bring him back.
he was so much interested into framing that constitution for USA कि मरते दम तक उनका ऐसा था कि नहीं भाई, आई हैव टू गिव माय इनपुट टू दिस, अदरवाइज आई डोंट ट्रस्ट कि ये क्या बना लेंगे. एंड दिखता है उनका साइंस इंप्रेशंस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पे. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे काम कर रहा था? पहले तो फर्स्ट मीटिंग इसका दिसंबर में होता है. नवंबर में इट वाज फॉर्म्ड, फर्स्ट मीटिंग held in December. Muslim League did not participated and they asked for a separate state for Pakistan, separate state of Pakistan. पहली मीटिंग में 211 मेंबर्स आते हैं. अगेन नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्या इम्पोर्टेंट है? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the temporary president of the assembly. तो थोड़ा पढ़ना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में. Who is he? What he did, his contributions and all. तो बिहार से हैं सच्चिदानंद सिन्हा. He was the oldest member at that time. And French practice, फ्रांस में क्या होता है? ओल्डेस्ट मेंबर जो होता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. तो इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए. बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एज वी नो. देयर वर टू वाइस प्रेसिडेंट्स, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी. सही, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, अगर कहीं आता है तो इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग एंड ऑल. तो 2 वाइस प्रेसिडेंट्स एंड 1 प्रेसिडेंट. टेम्पररी प्रेसिडेंट इज सच्चिदानंद सिन्हा. अब क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इन प्रीलिम्स. दे विल आस्क यू कि फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या आंसर दोगे? सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर होना चाहिए? भावनाओं को समझना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, अगर वर्डिंग्स में तुमको लगता है कि इट्स आस्किंग फॉर द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो गो विथ राजेंद्र प्रसाद, नहीं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट. दिसंबर में जब मीटिंग हुई, 9 को पहली बार मिले थे, 4 दिन के बाद 13 दिसंबर को मिलते हैं. एंड दैट टाइम नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस that why we are here, what we are going to do. तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो मूव करते हैं. क्या सबसे पहला इसका प्रोविजन है? दैट इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर करता है that India will be an independent sovereign republic. Independent, I think most of you understand. Sovereign is any government, any entity which has no superiors, which can take independent decisions. उसको किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, उसको हम सोवरन बॉडी बोलते हैं. जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं. किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होते हैं वो सोवरन होते हैं, वो अपने अपने मन से जो करना चाहे कर सकते हैं. देयर इज नो वन एल्स टू गाइड. अभी रशिया को मन किया, उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया. Nobody can do anything. International community can put ban, restrictions वगैरह वगैरह कुछ भी कर लो. बट रशिया में क्या लॉ चलेगा, रशिया क्या करेगा, it will be decided by the Russia. In the same sense, every country, small or big, नेपाल भी अपने आप में सोवरन है.
भूटान भी अपने आप में सोवरन है, वेदर दे आर स्मॉल और बिग, बट दे आर सोवरन, दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस। समटाइम्स क्या होता है, छोटे स्टेट्स के केस में यू विल ऑफन हियर दैट they could not take independent decisions because of the pressure of big country। जैसे भी नेपाल है, तो कई बार ऐसा accusation आता है that Nepal is so much dependent upon India that India interfere, or some of the Indian diplomats interfere into the internal issues of the Nepal। तो वो क्या होगा, इस ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि इट इज अ थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा से छोटा स्टेट को सोवरेनिटी मिलना चाहिए, दैट्स द प्रैक्टिस। तो इंडिया को बोला कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, सोवरन होंगे, एंड वी विल बी रिपब्लिक। पब्लिक इज रूल ऑफ पीपल, तो हम एक रिपब्लिक होंगे। यहीं पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही made it clear that we will be union of the states। we will read later कि यूनियन का क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्टेक्स्ट में, बट ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही उन्होंने कह दिया था कि इट विल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। they also declared that the power all the power and authority of the sovereign independent India is derived from the people, so people have the ultimate power। उल्टा क्या हो सकता है, इफ इट इज अ मोनार्की, अगर जहां पे किंग है, तो वहां क्या है, ऑल द पावर एंड अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है। अब अकबर का रूल है, तो इट्स नॉट, अकबर विल नॉट से कि आई एम रूलिंग बिकॉज पीपल हैज गिवन मी द पावर। अकबर विल से दैट आई एम रूलिंग बिकॉज आई एम पावरफुल। नहीं बात सुनोगे तो दीवार में चुनवा दिए जाओगे। बट इन अ रिपब्लिक वी से कि वी डिराइव पावर फ्रॉम द पीपल से। इंपॉर्टेंट फ्रेज समझना चाहिए थोड़ा ठीक से इसको, कि क्या मतलब है कि पावर डिराइव फ्रॉम द पीपल। वेयर यू कैन से कि पावर इज डिराइव फ्रॉम द पीपल, वेयर यू कैन नॉट से। तो अकबर का पावर कहाँ से डिराइव होता है, अकबर का पावर डिराइव होता है फ्रॉम हिज माइट, फ्रॉम हिज आर्मी, फ्रॉम हिज लेगेसी, कि ही इज द सन ऑफ द शाहजहां, ही इज द सन ऑफ हुमायूं, एंड हुमायूं वाज द सन ऑफ द बाबर। तो उसके लेगेसी से उसको पावर मिल रहा है। इन अ थियोक्रेटिक स्टेट, मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहाँ लोग रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं, वी वर रीडिंग अबाउट ईरान इन न्यूज़पेपर क्लासेस। तो ईरान में अताउल्ला खमीनी, उसको कहाँ से पावर मिल रहा है, इज नॉट डिराइविंग द पावर फ्रॉम द पीपल, ही इज डिराइविंग द पावर फ्रॉम द होली बुक। ही सेइंग कि कुरान से अल्लाह हैज गिवन मी द पावर टू रूल, अल्लाह हैज गिवन मी दिस विजडम दैट आई कैन डिक्टेट और आई कैन टेल कि व्हाट यू शुड डू। तो वहां पावर इज नॉट डिराइव फ्रॉम द पीपल। बट इन अ डेमोक्रेसी, prime minister is prime minister till the time people want him to be the prime minister। now ये लाइन देखो, देखेंगे जब हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे, सो दिस होल पैराग्राफ इज मोर और लेस कॉपीड इन आवर प्रियम्बल। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो अपना बाद में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ऐसा देखेंगे हम। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन। तो कल कोई कह रहा था कि इफ सेकुलरिज्म was not added, when the secularism word was not added in our preamble, तो क्या उससे पहले हम सेकुलर थे कि नहीं। लेकिन से कि हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही कह रहे हैं कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। So even before constitution was made we were secular, or the whole foundation was laid down on these secular principles।
ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे. दिस शुड बी मेमोराइज एंड शुड बी कोटेड इन मेंस आंसर्स एज मच एज यू कैन. बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तुमको मेंस के आंसर्स में एसेज वगैरह लिखने के लिए. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही क्या कहते हैं नेहरू, that the ancient land attains its rightful and honored place in the world. तो बहुत जेनेरिक सा लाइन है. कुछ भी लिख रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन आया तो यू कैन जस्ट सिंपली कोट कि एज said by Nehru in the objective resolution that it's a time that the ancient land attains its rightful and honored place in the world. कुछ भी चल रहा है, एजुकेशन पे क्वेश्चन आया तो एजुकेशन पे, डिफेंस में आया तो डिफेंस पे, फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है तो फॉरेन पॉलिसी पे, quote it anywhere. Again, this line is also very important and can be quoted freely. Make its full and willing contribution to the promotion of world peace. तो अभी मान लो ऐसा है, ईरान यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे तुमको आंसर लिखने के लिए आता है, यू कैन फ्रीली कोट की even in our objective resolution, this was the resolution of the founders, the fathers of this country and this constitution, that India should make a full and willing contribution to the promotion of world peace. अब इसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो. एक कि इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस. दूसरे तरीके से कि दैट कंट्रीब्यूशन शुड बी विलिंग कंट्रीब्यूशन. नोबडी शुड फोर्स अस टू पार्टिसिपेट. जैसे इंडिया अभी चूज कर रहा है कि हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है, व्हाई शुड आई चूज अ साइड? वी आर नॉट विलिंग टू चूज, वी आर नॉट विलिंग, वी आर नॉट चूजिंग. इंडिया शुड, ऑल्दो आइडिया इसी पे होना चाहिए कि इंडिया शुड कंट्रीब्यूट fully for the promotion of world peace and welfare of mankind. और इसको फिर 1947 22 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया जाता है. और यही है, इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसी को मॉडिफाई करके हम प्रीएम्बल बना देते हैं. 1947 में एक एक्ट हम पास करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्ट. इसको क्या क्या प्रोविजन है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं. Princely states के जो मेंबर थे, were not joining initially. They gradually started to join the Constituent Assembly. On April 28, 1947, representatives of 6 states were part of the assembly. 6 states के लोग इसके पार्ट बन चुके थे. माउंटबेटन प्लान आता है जून 3, 1947 में. हिस्ट्री में पढ़ोगे इन डिटेल अबाउट माउंटबेटन प्लान. इट्स आल्सो नोन एज प्लान बल्कनाइजेशन. तो माउंटबेटन जल्दी जल्दी में कहता है कि नाउ आई एम लिविंग इंडिया, तुमको भाई तुम्हारी आजादी जल्दी संभालो और मैं अब चला इधर से. क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वी विल गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन 1.5 ईयर, 18 months. 2 महीने इन्होंने पहले कहा कि हम 18 महीने में इंडिया को आजादी देंगे, लेकिन माउंटबेटन को लगा कि अब 18 महीने रहना भी मुश्किल है. और 3 जून को ही सडनली अनाउंस की ऑन 15 अगस्त आई एम गोइंग बैक, तुम लोग अपना देख लो. तो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से पार्टीशन हो जाता है कंट्री का. हाँ अच्छा बताओ. सर, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें जो नेहरू ने बोला कि हमारा इंडिया का जो एक फ्रीडम ऑफ कल्चर, एक फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसका मतलब है कि सेकुलर है. पर मैं बोल रहा हूँ कि ये 76 अभी में जब नहीं, ठीक है, अभी नहीं, उस पे आएंगे. चैप्टर पूरा पढ़ना है, मैंने बस मेंशन कर दिया. अभी उस पे आएंगे, चिंता मत कर. झूठ मूठ का डिबेट नहीं करना है. चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट, इतना देर से तुमको याद आता है. चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट. हाँ कहाँ थे हम. तो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से पार्टीशन हो जाता है. और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग का जितना एरिया था, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल जाता है. और इंडिया के पास जो एरिया रहता है वो सीट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाते हैं. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
पास होता है और इससे 3 चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुल्ली सोवरेन बॉडी। इससे पहले तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? इट वाज नॉट अ फुल्ली सोवरेन बॉडी। Although they said कि we firmly resolved to make India a sovereign country, but assembly itself was not sovereign because assembly was organized, or assembly was held with the permission of a British law. ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया कि ठीक है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे, बनना चाहिए। कैबिनेट मिशन ने आके यहाँ पे बोला कि ठीक है तुम बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और तब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज नॉट सोवरन। It was the Independence Act of 1947 which made the Constituent Assembly a full sovereign body. After this, Constituent Assembly को power मिल जाता है कि they can abrogate or alter any law made by the British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी कोई कानून आज तक बनाई है, they can alter, abrogate any of the laws made in relation to India. ब्रिटेन वाला लॉ नहीं चेंज कर पाएंगे। असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, आफ्टर 1947 एक्ट, इट स्टार्टेड टू परफॉर्म 2 फंक्शंस। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया एंड इट कंटिन्यूड वर्किंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी होता था तो इट यूज्ड टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज ऑफ इंडिया। जैसे आज हमारा पार्लियामेंट काम करता है, पार्लियामेंट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन लिखना नहीं है आज का पार्लियामेंट। इट इज जस्ट अ लेजिस्लेटिव बॉडी which take care of the existing laws, modify the existing laws, or make new laws. They do not write new constitutions. तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनका इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे प्रैक्टिस कैसा हो, ये देखने के लिए फॉर द टेम्पररी टाइम बीइंग ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिल जाता है। और एक पावर तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इनके पास था वो था ही। तो क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। पार्लियामेंट, जो पहला पार्लियामेंट का काम किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? पार्लियामेंट या फिर लोकसभा और राज्यसभा का जो हेड होता है वहां पे स्पीकर या चेयरमैन होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेयरमैन थे। तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में मिलता था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबल होता था, तो उसके प्रेसिडेंट होते थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते थे। और वही बॉडी, सेम लोग जब डे टू डे ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करने के लिए मिलते थे, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया जीवी मालवंकर, तो ये प्रिसाइड करते थे, वाज द फर्स्ट स्पीकर। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में आज स्पीकर होता है। एंड दिस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26। नवंबर 26 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट ओनली स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ पार्लियामेंट। मुस्लिम लीग वाले विड्रॉन हो गए, उनके मेंबर्स उधर चले गए, तो अपने यहाँ पे नंबर घट गया। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अदर फंक्शंस, यहाँ से अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। अदर फंक्शंस क्या परफॉर्म किया इन्होंने? इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन May 1949। May 19, ये क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अरेंज। सो 1949 में इन्होंने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया। कॉमनवेल्थ
is an association of countries which were once a member of ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश ने आजाद तो कर दिया, लेकिन एक बोला कि थोड़ा सा तो रिलेशनशिप रहना चाहिए. जैसे तो यूनाइटेड नेशंस काम करता है, वैसे ही कॉमनवेल्थ इन्होंने एक बनाया. Initially there was a lot of objection that India should not join any such ग्रुप. क्यों नहीं करना चाहिए ज्वाइन? उन्होंने कहा कि इट विल बी अ थ्रेट टू आवर सोवरेनिटी. फिर वो कॉमनवेल्थ से ब्रिटेन वाले फिर बोलेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो. बट कॉमनवेल्थ का ऐसा कोई इशू है नहीं. इट डज नॉट होल्ड सच पावर दैट इट कैन कमांड एनी कंट्री टू डू एनीथिंग एज सच. पढ़ेंगे आईआर में थोड़ा कॉमनवेल्थ के बारे में. बट इंडिया इसका मेंबर बन जाता है 1949 में. 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया. 24 जनवरी को, सो द लास्ट एक्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट वाज दीज थ्री थिंग्स, एंड द एंड दे डिड दीज थ्री थिंग्स. जनवरी 24 को नेशनल एंथम, जनवरी 24 को नेशनल सॉन्ग, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करना. All these three things happened on 24th January 1950. 26 जनवरी से 2 दिन पहले, फाइनल इनेक्टमेंट से 2 दिन पहले ये सारे काम हुए. नेशनल फ्लैग इन सबसे बहुत पहले 3 साल पहले अब सेलेक्ट हो चुका था, और जो बीच में काम हुआ है वो कॉमनवेल्थ का हुआ है. सो यू कैन अरेंज इट लाइक दिस. सबसे पहले नेशनल फ्लैग आया, फिर हम कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करते हैं, और फिर एंथम, सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट ये करते हैं. 2 years 11 months और 18 days का टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. एंड टोटल 11 सेशन होते हैं. एक सेशन का मतलब क्या हुआ, वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसा चल सकता है. जैसे हमारा अभी पार्लियामेंट में तुम लोगों ने सुना होगा विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, वैसा वैसा. तो यहाँ पे ऐसे 11 सेशन इसके हुए. इन दिस पीरियड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 114 दिन लगा. ड्राफ्ट लिखने में सिर्फ कि क्या क्या इसका प्रपोजल्स होगा, और 64 lakhs खर्च करते हैं. ऑल्दो दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. जनवरी 24 को फाइनल सेशन होता है. इस दिन आके सबको अपना अपना साइन कर देते हैं, और 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस्ड कर देते हैं, इनेक्ट कर देते हैं. कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास बहुत काम था. सो दे क्रिएटेड सम कमिटीज हु कैन लुक इनटू द स्पेसिफिक वर्क्स. So there were 8 major committees. You must remember the name of all the committees and their chairmen. एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है जो हर बार गलती करोगे. You might have heard these stories that Sardar Patel helped a lot in negotiating with the states or princely states and making them a part of Indian Union. तो ये जो वाला जब दिखता है ना, स्टेट्स कमिटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स, तो लगता है कि ये तो सरदार पटेल इसके हेड होने चाहिए. बट द हेड इज जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, कौन हेड है? जवाहरलाल नेहरू है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सरदार पटेल है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के. सरदार पटेल हेड है. नेहरू इज हेड ऑफ 3 other bodies including states committee, union powers committee, indian constitution committee और states committee के. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हैं. फंडामेंटल राइट्स जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज के लिए एचसी मुखर्जी,
नॉर्थ ईस्ट के लिए गोपीनाथ बारडोलोई, excluded and partially excluded areas other than Assam के लिए ठक्कर। और ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज यानी अफगानिस्तान के आसपास का या खैबर पख्तून वाला जो एरिया है, पाकिस्तान का कुछ एरिया है, उसके लिए एक ट्राइबल कमिटी बनाई गई थी। बट सिंस देयर वाज अ पार्टीशन, तो ये जो एरिया था ये इंडिया में था ही नहीं, तो उसकी कमिटी की कोई जरूरत नहीं थी। तो दिस कमिटी वाज नेवर आस्क्ड टू फंक्शन, ये बस ऐसे ही बना रहा। रूल्स एंड प्रोसीजर्स के लिए राजेंद्र प्रसाद थे, बिकॉज ही वाज, ये तो आसान है याद करना, बिकॉज ही वाज द चेयरमैन, तो रूल्स और प्रोसीजर तो वही बनाएंगे। तो ये उनके अंदर था। और स्टीयरिंग भी उनके अंदर था। स्टीयरिंग इज लाइक गाड़ी की जो स्टीयरिंग होते हैं, कब मीटिंग होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो फिर कौन डिसाइड करेगा? तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। So these two things were decided by Rajendra Prasad. He was the head of these. Union Powers or Union Constitution Committee, Jawaharlal Nehru. तो जहां जहां यूनियन है वो जवाहरलाल नेहरू का है। स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल तो ये दो बस याद रखोगे, बाकी सब याद रखना आसान है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स की जो मेन कम्युनिटी है उसके सरदार पटेल हेड है। छोटे, बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज हैं, इसमें सबको याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑफ देम। ऐसे पासिंग में इफ यू कैन मेमोराइज सम ऑफ देम इट विल बी गुड। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू ड्राफ्ट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, देन देयर विल बी डिस्कशंस ऑन दैट लेटर कि ठीक लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो ड्राफ्ट, देयर इज सम इनिशियल ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट दिखाओ। तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट फ्रेमवर्क लिखने का काम है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है। मेनी पीपल कैन हैव आइडियाज, सबको लगे कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बट हाउ टू पुट इट प्रिसाइसली, तो वो काम ड्राफ्टिंग कमेटी करती है। headed by none other than Ambedkar, and then there are some members, so you should try to memorize the name of the members of drafting committee as well. ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कि which of these were the members of drafting committee, या दे देगा के मुंशी, इनके बारे में 4 या 3 आइडियाज दे दिया, उसमें एक ये भी रहेगा कि he was a member of drafting committee. तो now when the first draft was made, it was presented to the people of India, and 8 months was given to the public to discuss the draft and propose amendments. After that, it was discussed again, and then it was passed. Enactment of the Constitution, इसको देखते हैं, ये important है। देखो, in NCERT classes, if you remember, we have read about कि how a bill becomes an act. एनसीईआरटी में पूरा एक बहुत बढ़िया ग्राफिक डिजाइन भी बना के दिया है। तो इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले व्हेन गवर्नमेंट हैज टू मेक एनी लॉ, फर्स्ट इट विल प्रपोज अ ड्राफ्ट, दैट ड्राफ्ट विल बी रिलीज्ड इन पब्लिक, पब्लिक विल गिव इट्स ओपिनियन कि ठीक है, ये इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक और स्टेक होल्डर्स, लेट्स सपोज देयर इज अ लॉ टू बी मेड अबाउट water management. So the people of that area or some experts in the water management, they will give their opinion and accordingly draft will be changed कि ठीक है, ये कुछ ऐड कर लो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर लो, the draft will be changed and then we will call it as a final draft. अब जब ये final draft बन गया, then government will present it into the parliament. तो पार्लियामेंट में देन देयर आर 3 स्टेजेस।
In the first stage, there will be first reading of this draft. In this first reading, मान लो कि the law is about water, तो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर आएंगे and he will read this draft. He will propose, इसको बोलते हैं introduction of the law or introduction of the bill. So he will introduce the bill that, see, I am going to make this law which is called as water management in this reason, कोई रीजन इस तरीके से मान लो कि उसका नाम है, तो वो नाम बता देंगे भाई हम ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. Then there will be a voting. People will vote and they say कि okay, we agree that this is an important bill which we should discuss, so let it be introduced. So there will be voting and if members will agree कि हाँ हमें डिस्कस करना चाहिए, तो then there will be second reading. In second reading we call it as clause by clause reading, जहाँ पे कि अब इस ड्राफ्ट के एक एक प्रोविजन पे डिस्कशन होगा कि ये वाला ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, एंड देयर विल बी वोटिंग ऑन दीज. सो फिर एक वोट होगा and when all of the drafts are passed, then it may happen that people will suggest amendments कि नहीं ये आपका ड्राफ्ट ठीक नहीं है, send it to some committee and we will discuss it later. So that can also happen. But if let's suppose it's a good draft and everybody agrees, तो फिर होता है third reading. And the third reading, the whole draft is again voted. Okay, we agree with the introduction, we agree with the content of this bill, we agree with all the amendments which were proposed, and उसके बाद final voting होगी. If everybody will agree, the bill will get passed. The same procedure was followed with the constitution as well. Final draft अंबेडकर ने लिखकर दे दिया था नवंबर 4, 1948 को. तो यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन होता है कि अच्छा अब हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये हम करना चाहते थे, दिस थिंग्स आर एडेड इनटू दिस. तो ठीक है, तो 5 दिनों तक ये जनरल डिस्कशन करते हैं. सेकेंड रीडिंग में दे डिड अ क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन. तो एक एक एक्ट, एक एक आर्टिकल, उसका सब आर्टिकल अब डिस्कस होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 1 साल लगभग डिस्कस होता है, नवंबर से अक्टूबर तक. इसमें 7,000 प्लस अमेंडमेंट्स लोग देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं, इसको चेंज करो. एंड इन दैट अबाउट 2,500 अमेंडमेंट्स वर एक्चुअली डिस्कस्ड. तो मतलब एक्सटेंसिव डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने लिख दिया और लोगों ने कहा कि हाँ चलो दिस इज समथिंग दैट वी आर अग्रीइंग एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस. नो, देयर वर 7,000 amendments and out of that 2,000, more than 2,000 were discussed. उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है एंड एवरीबॉडी सेटल्ड कि ठीक है ये जो अमेंडमेंट था वो ठीक था या गलत था, एंड देन इट वाज फाइनली पास्ड. सो आउट ऑफ द टोटल 299 मेंबर्स, 26 नवंबर 1949 को लोग आते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, और 24 जनवरी को आके 248 लोग साइन कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे कि अब इसको हम इनेक्ट करते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. हमने एनसीईआरटी क्लास में भी डिस्कस किया कि 2 टर्म आते हैं, अडॉप्टेड और कमेंस्ड और इनेक्टेड. तो 26 नवंबर को ये अडॉप्ट हो जाता है. ठीक है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ऑन 26 नवंबर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट वाज इनेक्टेड ओनली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड. कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आ चुका था उसके बाद प्रीएम्बल लिखा गया है. पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और तब पहला पन्ना. अंबेडकर का बहुत कंट्रीब्यूशन है. यू शुड रीड दिस. ही वाज द लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड ही इज नोन एज मॉडर्न मनु. Manu is the first lawgiver.
उसको मनुस्मृति हम लोग जो कहते हैं. तो he was considered as the first lawgiver because मनुस्मृति is considered as the first law book जिसमें बताया था कि आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And that's why Ambedkar is considered as modern Manu. अडॉप्शन के बाद आता है इन्फोर्समेंट. बत्तीस कह रहे कि किसने दिया ये नाम, कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इसे तो और मजेदार है ना. So he contradicted a lot of ideas of Manu and he came up as a new Manu. हाँ, तो he burned the मनुस्मृति और इसीलिए तो कि वो खुद बोल रहा है कि अब वो मनु नहीं, अब मेरा चलेगा, नया मनु मैं हूँ. Some provisions, ये इम्पोर्टेंट है, जो कुछ प्रोविजंस थे जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी से पहले ही इनेक्ट हो गए थे. 26 नवंबर को ही उनका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया था. ये नंबर याद रखने का कोई फायदा नहीं है, बट जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे लाइक 5, 6, 7, 8 सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड जो कुछ थे, वो सब पहले दिन से हमने फोर्स में ले आया था. बाकी 26 जनवरी को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट मानते हैं. तो डेट ऑफ अडॉप्शन इज 26 नवंबर और डेट ऑफ कमेंसमेंट इज 26 जनवरी. आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस स्टोरी, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे बनाती थी कांग्रेस 26 जनवरी को 1930 से ही. तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को ही मनाएंगे. विद द, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कमेंस होता है तो दो एक्ट जो थे वो रिपील हो जाते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज रिपील्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिपील्ड. ये खत्म हो जाता है कि अब इसके प्रोविजंस को हम नहीं फॉलो करेंगे. व्हाट वी विल फॉलो? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट. ये याद रखना है, ये कंटिन्यूड रहता है, ये एबलिश नहीं होता है. तो ऐसा अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वेर एबलिस्ड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 दोनों एबलिश हो जाता है, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट कंटिन्यूड रहता है. एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनने की जब बात हो रही थी उससे पहले ही, मच बिफोर दैट, कांग्रेस हैड सेट अप इट्स ओन कमिटी. देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो कांग्रेस के भी लोग हैं, नॉन कांग्रेसीज भी हैं, प्रिंसली स्टेट्स के भी लोग हैं, बट कांग्रेस ने अपनी एक कमिटी बनाई थी इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग थे एंड दे हैड कम टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. ये कांग्रेस के एक्सपर्ट्स लोगों ने जो कमिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मोर और लेस द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम. आज ये क्रिटिसिज्म पढ़कर जल्दी से खत्म करते हैं इसको. क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? पहले कि इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज members were not elected directly and there was no universal adult franchise. तो बहुत कम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि किसको जाना चाहिए. इट मे वुड हैपन कि इफ देयर वुड हैपन अ इलेक्शन, बेटर पीपल, मोर such people who were really popular in the people, वो लोग इलेक्ट होके आ सकते थे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, not a sovereign body, as we said, Constituent Assembly started working under the proposal or by the proposal of the British government.
तो it was not a sovereign body, at least in the initial phase. टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत लंबा टाइम लेती है. निरुजुद्दीन अहमद कहते हैं कि इट वाज नॉट अ ड्राफ्टिंग कमिटी बट इट वाज अ ड्रिफ्टिंग कमिटी. अमेरिका वालों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बना दिया था और ये हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी ड्रिफ्ट करती रहती है, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा मानते हैं. इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस. ऑस्टिन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री. एक ही पार्टी थी तो कांग्रेस के ही सारे मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स. लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, दो ही तरीके के लोग थे इसमें, या तो फुल करियर वाले पॉलिटिशियंस थे या तो लॉयर थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रोट अ वेरी बल्की कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज. विस्काउंट सिमोन कहते हैं कि इट वाज अ बॉडी ऑफ हिंदूज. चर्चिल ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, ऐसा बोल के कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी रिप्रेजेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Although some of them are based upon facts and all, लेकिन सबका काउंटर भी है, and I hope all of you can find the counters कि why. एक बार कोशिश करना आज लिखने का, ठीक है, कोशिश करो इन सबका काउंटर लिखने का. 6 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं ना, ट्राई टू राइट द काउंटर आर्गुमेंट्स फॉर ऑल दी 6 पॉइंट्स. ठीक है, लिख सकते हो. ठीक है, कल डिस्कस करेंगे उसको. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है. पहले तो कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत लोगों को नहीं याद होगा. एलिफेंट वाज अ सिंबल, लायन, अशोक स्तंभ, ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. एलिफेंट वाज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बी एन राव जो थे ये लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. एच पी आर अयंगर वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी. एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन. ये तीनों तो खैर उतना फेमस नहीं है, एग्जाम वगैरह में नहीं आता है जनरली, बट अयंगर वाला याद रखना चाहिए, सेक्रेटरी. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ही वाज द कैलीग्राफर. सो और इन्होंने इटालिक स्टाइल में लिखा है. तुम देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा ऐसा सजा सजा के, जो कैलीग्राफिक फॉन्ट है दैट इज फ्लोइंग इटालिक स्टाइल, एंड इट वाज डन बाय रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. और इसको ब्यूटिफिकेशन, इस पे जो पेंटिंग्स है, विल फाइंड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल फाइंड पेंटिंग्स फ्रॉम रामायण, पेंटिंग्स फ्रॉम महाभारत. ऐसे बहुत सारे रिलीजियस नॉन रिलीजियस पेंटिंग्स मिलते हैं. कुछ लोग उसको भी पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बट इट हैज रिलीजियस पेंटिंग्स ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगेन दैट रिप्रेजेंट्स द. हाँ, ये डिबेट हम लोग एक बार एनसीईआरटी क्लास में भी कर रहे थे कि रामायण महाभारत पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए. एट दैट टाइम आई थिंक आई मिस दिस आर्गुमेंट when our constitution has image drawn from Ramayana and Mahabharata. So that's the cultural part जो हमने उस दिन डिस्कस किया था. It doesn't make constitution a non-secular constitution. तो ब्यूटिफिकेशन नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया. ठीक है, इन दोनों की पेंटिंग्स है. प्रियम्बल का ब्यूटिफिकेशन में नंदलाल बोस नहीं, सिर्फ राम मनोहर सिन्हा है, ये याद रखना है. लिखने का काम फिर रायजादा करते हैं और सजाने का काम, पेंटिंग बनाने का काम राम मनोहर सिन्हा करते हैं. हिंदी की जो कैलीग्राफी है वो वसंत कृष्ण वैद्य का किया हुआ है, और डेकोरेशन जो यहाँ पे है वो नंदलाल बोस का है. ठीक है,
ऐसे डिवाइड करके, ऐसे इतना डिटेल्स में तो पूछना नहीं चाहिए, बट इफ अगर मैं नोट्स बना रहा था तो मैं इसको इस तरीके से नोट्स बना लेता। इंग्लिश वर्जन में कैलीग्राफी एंड ब्यूटिफिकेशन। सो कैलीग्राफी में एवरीवेयर यू हैव द सेम नेम, whether it is English or Hindi. तो सॉरी, कैलीग्राफी में यू हैव डिफरेंट, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम है। हिंदी, इंग्लिश और प्रियम्बल, तीन चीज अपने को देखना है। तो इंग्लिश में कैलीग्राफी इज डन बाय रायजादा, प्रियम्बल में कैलीग्राफी इज डन बाय रायजादा, बट हिंदी में कैलीग्राफी इज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। ब्यूटिफिकेशन इंग्लिश वर्जन में इट्स डन बाय बोथ, सिन्हा जी भी हैं और नंदलाल भी हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। हिंदी वर्जन में ओनली नंदलाल एंड प्रियम्बल में ओनली राम मनोहर सिन्हा। तो एक बार इस तरीके से अगर लिखोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि हु हैज डन व्हाट। ठीक है, ये आ गया समझ में? कार्तिक सिंह के व्हाट इज काउंटर आर्गुमेंट? काउंटर आर्गुमेंट इज कि why these criticisms are not true, why do you think these criticisms are not legitimate, what you can say if somebody is saying it's not a representative body। तो इसके अगेंस्ट हम क्या कह सकते हैं, वही बताना। इफ somebody is criticizing it was overtly Hindu or it was only Congress, तो क्या सजेशन आप अपने तरफ से दे सकते हो। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, इनिशियली देयर वाज नो ऑथराइज्ड हिंदी टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में लिखा गया। when you translate, when somebody will translate it in Hindi, translation could have many problems, different people can translate it differently. So if somebody does not know Hindi, so does not know English, and if he quotes from the constitution कि देखो आर्टिकल 21 में हिंदी वाले वर्जन में ऐसा लिखा है और उसके इंग्लिश वाले वर्जन में कुछ और उसका ट्रांसलेशन है, तो किसको फॉलो किया जाएगा, हिंदी वाला वर्जन या इंग्लिश वाला वर्जन? ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था टिल 1987। 1987 तक तो ऐसा ही था कि whenever there is a conflict, look up to the English version। लेकिन अगेन, in a country like India, if your constitution is do not have a authoritative text in Hindi, और बस हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा हुआ नहीं है, तो तुम क्या ही फिर हो सकता है। तो ये काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था। सो फाइनली 1987 गवर्नमेंट came up with an authoritative text of the constitution। गवर्नमेंट ने ट्रांसलेट करवाया बढ़िया से और बोला कि ये आज से ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। सो इफ देयर इज समथिंग रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यू डू नॉट नीड टू कन्फर इट विथ द इंग्लिश वर्जन। ये इसमें जो लिखा है वो ठीक है, वही सच है। एंड दिस हैपेंड एंड वन आर्टिकल वाज एडेड, आर्टिकल 394A। तो यही है, और इसमें क्या देखना है, हाँ, ये एक अच्छा टेबल है यूसुची। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 7 आर्टिकल्स हैं और इट वाज रिटन इन लेस देन 4 months। सो अभी जैसे वो तुमको एक काउंटर आर्गुमेंट बताता हूँ, वहां लिखा है क्या कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम और वेरी लॉन्ग टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वन काउंटर आर्गुमेंट कैन बी कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट टुक मोर और लेस द सेम टाइम। ऑस्ट्रेलिया को तो 9 साल लग गए, कनाडा टुक 2.2 years 6 months, although it's a very less complicated than India। तो हमने जो किया वो ठीक ठाक में ही टाइम में कर लिया। और यूएसए ने तो बहुत एक प्रिमिटिव सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है which has only 7 articles। ये 7 आर्टिकल लिखने में 4 महीना लगा रहे हैं, इस हिसाब से तो अपना देख लो तो 395 लिखने में हमने जो लगाया तो कम ही लगाया है। सो ऑल्दो ये मल्टीप्लिकेशन वाला आर्गुमेंट मत लिखना। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे, याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1935 में लिमिटेड फ्रेंचाइज था, जो टैक्स देगा, प्रॉपर्टी होगा और एजुकेशन होगा, मैंने बता दिया है। प्रोविजनल पार्लियामेंट सीज टू एग्जिस्ट ऑन अप्रैल 17, 1952। क्या हुआ था, पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना, तो बाद में उसको दो काम मिल गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी और पार्लियामेंट का भी। तो इट कंटिन्यूड वर्किंग एज अ पार्लियामेंट till 1952, April 1952, and after that election happened, a new prime minister was made, and parliament, as we see, come into being. ये मैंने तुमको बता ही दिया है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और प्रोविंसेस ये अलग हो गए थे रेफरेंडम में, तो उसके बाद से ये जो कमिटी बनी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली, ये कभी मिली नहीं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। और इसके चेयरमैन कौन थे ये हमको पता भी नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्रॉम, ये लक्ष्मीकांत को भी नहीं पता है। तो ठीक है, वी एंडेड एट इन द टाइम। कल आके सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है।